अप्लाई कर सकता है। कम से कम ग्रेजुएट तो होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट भी ऐसा हो कि फिर उसके बाद आप टेस्ट भी लेंगे, एग्जाम भी रखेंगे, ताकि थोड़ी बहुत समझ हो। बेसिक उसको फॉर एग्जांपल प्रिजन रूल्स ही शुड नो, क्योंकि वो जेल का वार्डन बन रहा है तो प्रिजन रूल्स मालूम होने चाहिए। सीआरपीसी भी कुछ हद तक मालूम होने चाहिए कि कब कस्टडी में आता है, कब नहीं आता है, सब कुछ ठीक है। अब जेल में आप सोचिए कौन रहते हैं। इट्स नॉट लाइक द बेस्ट ऑफ सोसाइटी गोस एंड स्टेज इन द जेल। ठीक है, कोई इनोसेंट भी रहते हैं, मैं ये नहीं मान रहा हूँ। आई एम श्योर जुडिशरी ऑल्सो समहाउ कन्विक्ट्स इनोसेंट, बट ज्यादातर अगर जेल में है, वो भी सेंट्रल जेल में है, तो हो सकता है कि वो कॉन्विक्ट्स ही है, और कॉन्विक्ट भी कुछ ज्यादा झुक के हो सकते हैं, कोई मर्डर। वीडियोग्राफी मेरी पसंद नहीं ना, बोलो करो। Basic contracts, agreement and so I learned many things, and inshallah I will be applying that concepts in my teaching also in future. So thank you very much sir for addressing for almost a marathon today, and we are very fortunate that we have you. Inshallah will, and I hope we'll also witness in the future also. Thank you very much. Thank you. I request my younger brother to come. हेलो, चलिए कैसे यार। पहला सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था साहब, शाम हो गई साहब, सुबह से बोलते जा रहे, आखिर नाश्ते में क्या खाए थे साहब? That consistency, that patience, perseverance, I'm astounded by his marathon lecturing session. Coincidentally, I'm teaching in a law college since some months. After every 1 or 2 hours, I get exhausted. So he's been, controlling things and speaking for. That is fantastic. Firstly, I would say those people who have gone on the bench, they are people, मतलब दूसरी दुनिया के प्राणी है वो, other planet, already एक जनरल मास्टर्स में परसेप्शन है, कोई जज साहब आ रहे बोले तो जज साहब क्या है, एमएलए साहब है। I'm talking about the masters. You look at them, एक उनके सर पे कुछ ऐसा कुछ गोल पीछे आ गया जैसा समझते हैं, मतलब बोलते हैं ना, तो परी उसके ऊपर जो आ गया, so they are already having a halo effect. So to get the judge to come down and speak, to be honest, I've been looking for this opportunity from a very long time, and I'm very lucky enough to have gotten such intimate, long, exhaustive talk. And other than during the session also, other time also I've been asking a lot of important questions, and to be honest, life decision questions about practice and judiciary and things have been very much benefited by sir's knowledge and this thing. And I just said one comment, and it is very difficult when people get into proper adjudication. So I hope sir gets some time to come down and speak, and this has been very, very beneficial. I just want to say thank you very, very much sir for giving away all the experience, stamina, all the knowledge and everything what we have prepared. Thank you very, very much. Thank you very much. Abraham Lincoln once said, the more you sweat in peace, the less you bleed in war. So in the way, I remember Asad preparing for UPSC days,
He's a consistent hard worker, and I know he with very minimal effort for JCJ he cracked it, because his real effort was for UPSC, which is a way bigger competitive exam than JCJ. So I'm happy he selected for judicial magistrate examination in 2020 and by rank 3. And he's a consistent hard worker. It's not a just overnight success. It's a success built over 5 years of time. So I remember very positive and motivating words in a long association I had with Asad, brother Asad, from my UPSC days. So if somebody else can speak about today's workshop, it will be beneficial to all. Adiba. Nadira. Jazakallah khair for everything, to everyone in the faculty, in the team, and it will go firstly to the judge, the fact that you took the initiative, you wanted to give time in that position to help the community out. That was, may Allah reward you for that so much. May Allah keep that in your heart and protect that spirit in your heart, so that in future you can just live along with it and help us. And may more people become, you be an inspiration to all of us like that. May all of your efforts should bring up more things, and I pray that whatever you've done for us, because you took the initiative, we could assemble, we could try that we make it best. We reached out to people. All the hard work was inspired by you. So I pray that there are more people like you, and inshallah we have a lot of inspiration from you, and inshallah we'll be one of those as well. All of us, inshallah. And may Allah make us better than what you asked us for. Ameen. And it is very less that I am saying, but I speak for the females here. The way you approached the way our faculty members approached us was very appreciative. They wanted us to go forward. All of them became welcoming, because we all knew that you wanted us to specifically come, that you wanted that we have our heads up to this. You made it so easy to believe that we can crack this, we can do this. Inshallah, वो ईमान भी साथ में है और अपना जज्बा भी साथ में है, तो इंशाल्लाह हम कर दे सकते हैं. You made us believe that. Alhamdulillah, Jazakallah khair. They say success is contagious, and I'm very sure Brother Asad's success will spread like a wildfire, and inshallah next year we'll see, this year, or not next year, this year we'll see many more successful faces from the crowd here. I now give mic to, in fact, if you actually analyze, JCJ is a very less competitive exam compared to other competitive exams in India, because you hardly have a competition from 6 or 7 colleges, hardly seniors and juniors combined. We have like Pedal Ram Reddy and a few other colleges. So the competitive batch of people appearing for this exam is very less. And if you also note, there is a Supreme Court guideline judgment last year that the exam should be conducted every year. State of UP, there is a judgment which in other words means that every year the exam has to be conducted. If there are no vacancies, a zero vacancy notification needs to be delivered by the High Court. So now that it is a precedent now, I think every year the notification for next 30-40 years, every year the notification comes for the judicial examinations. And being a federal country, I don't see any massive structural changes in judicial examinations. So the same competition will be there. If you can, like Brother Asad said rightly, that if you can work for like 6 months consistently with a single-minded devotion, I don't see this exam as a very hard examination to crack. Now I request Sir Khalid sir to talk a few words. Thank you. Assalamu alaikum.
Thank you so much everyone for coming here today to hear Asad Saab speak and motivate us. Actually, we were expecting around 100 aspirants, but only a quarter of that number turned up. I was afraid Judge Saab would adjourn and give us a next day, but fortunately for us, he is not like other judges. He, in spite of the low numbers, in spite of the low numbers, he motivated us, gave us a great session, whole-day long session. And in spite of this being a free session, only 25% of the people turned up. Whatever it may be, Sunday, getting up late, whatever. More Muslims should have, more students, brothers, sisters should have turned up today. That did not happen. So next time what we will do is we will keep a feast. Okay, and then probably we will come. Feast waste में करना बोल के शायद आप लोग आ जाएंगे. So what I would like to say is that all of this, even if 25 students have turned up, it has been a great session. I hope it has been a great session for all of you. And again, thanks to Deksa. Also to all the members of this team. This team includes a few people whom you have seen work behind and in front of the screen today, making arrangements, making everything work smoothly. I would request all of you, our President Manzoor Saab, Imtiaz Saab, to kindly come on stage so that the team can see, the gathering can see who the people behind this session. Also, Brother Muhid, Brother Amir, Nadira, Wasim Saab, Shahid Nadeem Sahab, Aja Pasha, and हाँ चलिए चेस चेस ले चेस unfortunately I have not taken the name of anybody. Abul Hasan Sahab. Abul Hasan Sahab. And one लाइव है more लाइव है brilliant लाइव person पे लाइव whom we have just listened, Mehboob Sahab. Please kindly come. अब आधे लोग तो आ गए. देखिए आप लोग की स्ट्रेंथ इतनी कम है. महबूब हुसैन साहब, एडवोकेट महबूब हुसैन साहब, अब आप लोग भी आ जाइए. नहीं, क्योंकि आधे लोग तो यही है, ऑर्गेनाइजर्स ही है. कितने कम लोग आप लोग अटेंड करें आज? आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हम लोग अटेंड नहीं करें. आप जाके उनको बोलिए. सर कितने थे 90 लोग? सर कैसे आप लोग भी वहाँ पे आना चाहिए, हम लोग वहाँ बैठना चाहिए. नहीं, देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि जुलाई से उनको फायदा हो. हमारा मकसद है कि कम्युनिटी को फायदा हो. जो नहीं है उनको नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे अपन कि ऑल ऑफ अस शुड बी हियर. सो I would request our President, Mr. Manzoor Saab, to say a few words. And in any case, thank you, all of you, for being here and being part of this program for the whole day. I suppose some of you did not even have breakfast. कोई है ऐसा? प्लीज हाथ उठाइए. ब्रेकफास्ट वाले दोनों ने कहा आपको एक स्पेशल अवार्ड दिया जाए. Honorable Judge Mr. Gullah Sharif Sahab, Imtiaz Siddiqui Sahab, महबूब हुसैन साहब और हमारी टीम के पूरे मेंबर्स, एस्पिरेंट्स, अक्सर मैं ऐसे स्टोरीज पढ़ते रहता हूँ
और ऐसे लोगों से मिलते रहता हूँ जिसकी जिंदगी एक बहुत अच्छी गुजरी है, जिसमें साहब भी मौजूद है, जो अपने पूरे कैरियर में कभी भी आप पे एलिगेशन नहीं आया, जिसमें कई ऐसे कमिश्नर से मेरी मुलाकात हुई। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के कमिश्नर अजमतुल्लाह साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लोगों के लिए एक नमूना है। मेरा एक दफा मेरा उनके साथ संगारेड्डी तक सफर था, तो उस दौरान में उन्होंने जो सुनाया, तो बस आपकी इस बातचीत की किताब होनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्ल के लिए हमारे लिए एक मिसाल रहा। ये चीजें इसलिए मैं प्रैक्टिकल तौर पर लोगों से मिलता हूँ और सोचते रहता हूँ, तो शायद मुझे वैसे ही लोग मिलते हैं। और एक शख्सियत शफीक साहब की, जो चीफ सेक्रेटरी रैंक कर हो के रिटायर्ड हुए, वो भी आपके LLB किए हैं और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आज उनको यहाँ पे मदद किया था कि इत्तेफाक से वो अपने वतन गए हुए हैं पटना, तो बता रहे थे मैं जरूर आऊंगा फिर आपके पास। तो इस तरीके से कई ऐसी शख्सियतें हैं हमारे पास जो गवर्नमेंट में पोजीशन, ऊंची पोजीशन रखते हुए भी वो लोग कभी अपनी जिंदगी में एलिगेशंस नहीं आए। जैसा कि जन्नत हुसैन साहब का नाम सुना आपने, कमिश्नर बल्दिया थे, उन्होंने भी एक बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया। और एक ऐसी शख्सियत थी मुइजुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो शहर के चीफ सिटी प्लानर होकर रिटायर्ड। ऐसे कई ऐसी शख्सियतें हैं जिनको मैं जानता हूँ और बड़ी खुशी होती है उनसे मिलकर कि वाकई हमारे सामने ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं, नमक अरे आटे में नमक के बराबर, लेकिन बराबर अपना मुकाम रखे हैं। और एक जो बिल्कुल ताजी शख्सियत को मैं जानता हूँ, तो खुदा में है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहे हैं। लोग उनकी तारीफ करते हैं कि ये लड़का जो है कभी करप्शन नहीं किया। तो ये तमाम चीजें बोलने का मतलब ये है कि हमारे जो अभी नए जो जुडिशरी में कदम रखना चाहते हैं, ये तमाम लोग ऐसे लोगों की जिंदगी को पढ़ें और सोचे कि वाकई हमारे बड़ों ने, हमारे सीनियर्स ने किस तरीके से काम किया। वाकई अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी खाने के टेबल पर जज साहब के सामने, तो बताया जा रहा था, सैफ ने कहा कि भाई सैयदों को क्यों रिजर्वेशन नहीं दिया गया। तो उस वक्त के मोमेंट्स में मैं भी शरीक था, जिस वक्त हैदराबाद को एक कमीशन आया था, उस वक्त हम भी जो है MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम जो है उनको जाके हमारे डिमांड्स दिए और हम बताए कि 4% की कितनी अहमियत है। उसके लिए दूसरी और ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर आई थी, 4% नहीं होना बोल के, जिसके अंदर कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो 4% नहीं होना बोल के जो कोशिश कर रही थी। लेकिन कोशिश ऐसी रही उस वक्त की गवर्नमेंट की, YSR गवर्नमेंट थी, शफीक साहब उसके मिनिस्टर थे, इतना बेहतरीन कारनामा हुआ कि आज तक हमारे के कई बच्चों को उसका फायदा हुआ। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी कामयाबी कहीं नहीं होगी जो YSR अपने दौर में की। आपको मैं MBBS का जरा हवाला देता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा काम नीट पे किया हूँ 10 साल से, तो मैं जानता हूँ कि हजारों की तादाद में बच्चों को फायदा होता है। मैं समझता कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पर जो है गवर्नमेंट के साथ साथ जो हिंदू नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस है, उसके अंदर हमारे बच्चों को 4% एडमिशन मिलता है। 4% सीट फिक्स है, आपको मिलना ही मिलना है। तो अब ऐसी रियासत में समझता शायद कोई दूसरी जगह हो। एक तो गवर्नमेंट में हमारे बच्चे सीट लाते हैं, फिर उसके बाद मेरिट बेसिस पे लेकर आते हैं, फिर उसके बाद रिजर्वेशन की बुनियाद पे उनको मिलता है। PG में भी वैसा ही है, फिर उसके बाद आपके रिक्रूटमेंट भी वैसे है। तो ये जो 4% का आपको जो दिया जाता है, ये YSR को इसका सिला जाता है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने खामोशी के साथ, बहुत सारे इदारों ने काम किया जो इस 4% को कामयाब बनाने के सिलसिले। तो बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता आप लोगों का, क्योंकि जज साहब सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं और एग्जॉस्ट हो गए होंगे। लेकिन वाकई मैं ये तारीफ करूंगा, और बेइंतहा सिद्दीकी साहब से भी मैं यही बात कर रहा था कि मुला वाकई
जज साहब जो है गैर मामूली जो है कंटिन्यूस लेक्चर देते जा रहे हैं। इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने कहा भी यंग आदमी हैं और उनके अंदर जो है एक अज़म है कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर दिखाएं। आज के इस प्रोग्राम में वेलकम क्या, बिल्कुल अब वेलकम तो हो गया है, अब हम विदा करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी और पर्सनल नहीं तो कम से कम जूम पर तो होती रहेगी। और जुडिशरी की जानिब से मैं आपको ये बताता हूँ, खासतौर पर हमारे एकेडमी ने जो सोचा है वो ये है कि इस सिलसिले में बहुत सारे क्लासेस कंडक्ट करने का, और जो जो इंटरेस्टेड है आप लोग अपना इंटरेस्ट बताइए और क्लासेस कहीं पर भी हो सकती हैं, जगह का इंतजाम हो सकता है। इंशाल्लाह आज जो शख्सियत आई थी अमेरिका से आपसे मिलने के लिए, वो तो बहुत बड़ा ऑफर देकर गए हैं मुझे, इंशाल्लाह मैं उनसे भी बात करूंगा। तो इंशाल्लाह देखिए, हम जब कोशिश करते हैं तो कई राहें निकलती जाती हैं। तो बहरहाल आप तमाम हजरात को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह जाता हूँ। खुदा हाफिज़। आपको एक और बात ये बताना था कि पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, प्लीज जाते वक्त रजिस्टर करके जाइए अपना नाम जो इस वक्त है, क्योंकि जो आए थे शायद कुछ लोग चले गए तो हम उस वक्त अनाउंस नहीं करना चाहते थे, जो पूरा दिन रहे तो आपके लिए जज साहब थे और आप भी अगर पूरा दिन यहाँ पे अटेंड करें तो आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, प्लीज वो रजिस्टर करके जाए। और दूसरी बात यह है कि AIB के क्लासेस भी होंगे, मई में कुछ एग्जाम है, तो जिन लोगों को AIB बार एग्जामिनेशन लिखना है वो क्लासेस भी हम वेरी सुन अनाउंस करेंगे। दूसरे का एग्जाम्स का तो हम वो कर रहे हैं, आपको पता है हम में से 3-4 लोग लॉसेट के क्लासेस भी लेते हैं, तो आप ग्रुप में वो भी पहचान के लोग सिस्टर ब्रदर्स फ्रेंड्स रिलेटिव्स, तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं मेरा नाम। तो आई वुड लाइक someone else to speak something. एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, जस्ट वांटेड टू मेक अ रिक्वेस्ट। Another we have got almost 30 participants here, so it's not that के 100 लोगों को रजिस्टर करें सिर्फ 30 जन या 20 जन है। You can make it, even if 20 has come, you can make it as 100. You can make it as into 10. If I hope you have got something here. If you can take over yourself, or you can take on yourself कि भाई आज जो सीखे, whoever it is in my contract, whoever he or she is in my contract, for one or other reason he or she cannot come, and I will make sure that whatever you have learned today, I'll send it to 10 students, and you can make sure that कि भाई that person can make sure that कि वो 10 students 10 multiply हो सकता है। So it's not कि भाई कोई present है या नहीं है, हर के अलग वजूहात रहते। There are many other things which we cannot even think about. So I want one thing from you कि भाई आज जो भी सीखे आप आगे बढ़ा रहे हो, and next time inshallah when the judge sahab comes, we would find people waiting near the door to come in, and it is your responsibility to make it. ठीक है, inshallah today's program has been very much successful, and thanks to all the participants and all the dignitaries present here. So thank you. There is a felicitation program. So, I request Manzoor sir, Siddiqui sir to felicitate Judge Tasneema Sharif sir. जज साहब का बेहद शुक्रिया जो आज का पूरा दिन हमारे लिए निकाले, हमारे एस्पिरेंट्स के लिए निकाले। आई होप यू ऑल मस्ट हैव रियली अप्रिशिएटेड एंड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम। और जाते वक्त प्लीज काइंडली रजिस्टर करिए, हम लोग आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे। I wish to conclude this program. Amongst us is Maulana Shahid Nadeem sir, who is a religious scholar by himself and also LLM graduate aspiring additional district judge. I request Shahid Nadeem sir to speak and conclude the session. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim.
सबसे पहले तो ऑनरेबल जज जनाब असदुल्लाह शरीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सारी टीम की तरफ से उनका मकसद था कि हम ऐसे एस्पिरेंट्स को आज जमा करें। आज की जो निश्चित थी, आज का जो सेशन था, हमारे हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग 100 स्टूडेंट्स, लेकिन जिस तरह हॉल है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इकबाल का एक शेर याद आता है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल इस कश्त वीरान से। कश्त कहते हैं बाग को, तो एक वीरान बाग को देखकर इकबाल कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है। तो ये जो हमारे पास आए हैं, ये बहुत ही सरखेज लोग हैं जो इस सेशन में शरीक हुए हैं। जो सीटें खाली हैं वो हम उनके लिए अपने यानी कोई हमारी परेशानी का बायस नहीं, लेकिन जो आए हैं पूरा दिन हमारे साथ लगे रहे, बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। और एक बात यहाँ पे अर्ज करता हूँ, सिर्फ बिल्कुल आधा मिनट आपका लूँगा, कि जनाब असदुल्लाह शरीफ साहब ने जो कोचिंग के लिए कहा था, बिल्कुल 100% सही है। क्योंकि मैं खुद एक JCT एस्पिरेंट हूँ और हैदराबाद में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जहाँ पर मैंने कोचिंग नहीं ली होगी, जहाँ के मेरे पास नोट्स नहीं है या उनके दिए हुए क्वेश्चन बैंक्स नहीं है। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने देखा है, सब जगह पर एक तरीके से पढ़ाया जाता है, हर एक अपना अपना है। लेकिन जो चीज हमें वो कोचिंग सेंटर्स में मिसिंग थी, आज आपको असदुल्लाह शरीफ साहब ने वो इनपुट्स दी। इट इज बिल्कुल बिल्कुल बेशकीमती इनपुट्स। आपको जो लॉ है, जो कानून है, वो तो बुक्स में है, आप नोट्स है, hundreds of videos आर देयर ऑन YouTube, बहुत सारे कुछ है, लेकिन जो इनसाइड और इनपुट्स आपको जो जुडिशियरी में जाने के लिए होने चाहिए, अगर आप लाख पैसे भी खर्चा करें तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आके आपको ये इनपुट्स दे। हम तड़पते थे, कृष्णा सर जो जुडिशियल एकेडमी के इंस्ट्रक्टर हैं, हम उनके पास पढ़े थे, उनके पास भी हमने कोचिंग ली जो जुडिशियल एकेडमी, और इसलिए भी ताकि वो हमें कुछ बताएं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम जुडिशियल एग्जाम्स में, लेकिन वहां पे भी हमें नहीं, पैसे देकर भी हमने नहीं हासिल की। जो असदुल्लाह शरीफ साहब ने बिल्कुल खुले दिल के साथ हमारे साथ वो सारी चीजें शेयर की जो एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे कि और लोग हमारे साथ जुड़े, और जो लोग जुड़े हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उनके सामने, उनके बेंच पर हम भी हमारी वकालत डालकर बहस कर सके। जैसे मेरी एक दिली तमन्ना है कि मैं असदुल्लाह शरीफ साहब की भी कोर्ट में बहस करूं जाके, ताकि उनसे भी कुछ ऑर्डर लो, कम से कम एक्सपर्ट इंजेक्शन तो उनसे ले लो। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो हाजरीन हैं, हम इंशाल्लाह हम आप लोगों को भी बेंच पर देखना चाहते हैं। हम आप मेहनत करें इंशाल्लाह। बाकी सब मुकद्दरात की बात है।